I'm a hotel management graduate, my first passion. I have a master's in English and I've done a CELTA from the Cambridge University in England and a C1 level Italian from the Siena University in Italy. मैं self-employed freelancer हूँ. I am an examiner. मैं hotel management institutes के exams लेती हूँ with the National Council और also एक assessor हूँ with the British Language Institutes which are based in Milan. वो शहर जो कोविड के बाद सुर्खियों में है, मतलब हम उसे अब मशहूर नहीं कहेंगे, प्रख्यात कहेंगे. So I also work as a real estate consultant in the Tri-City, and of course, I'm a proud Amway business owner. Actually, my career roughly spans 30 years, and in 3 countries. I worked in India, in Italy, and the US. And here I will say age is just a number, but neutralite and artistry are a choice. तो काफी लोगों के सिर मुझे दिख रहे हैं हिलते हुए कि हाँ, yes, neutralite and artistry are a choice. I worked with a lot of leading hotel chains when I started my career. So I worked with the Oberoi's, Taj, Hyatt, Usha Shram Hotels. I became a manager at a young age of 24 और फिर मैं manager operations हो गई and a GM by 27. उसके बाद हम move किए, हम मिलान चले गए और वहाँ मेरा career change आया. I went into education and training and I worked with leading corporate houses, international business schools. And other than that, I also worked with the Italian high schools. उस समय के लिए I was the only Indian doing that, and I'm very proud of that. Lovely memories. मिलान ने मुझे self employment के बारे में सिखाया actually. उसके बाद हमारी घर वापसी हुई due to some personal reasons. And here also I did a lot of interesting things. I handled international matches with the PCA. I am still not a cricket fan, but I did that. I did a lot of trainings for the Cambridge exams, for institutes, etc. और मैं एक institute की hotel management की principal भी रही थी. उसके बाद as time and opportunity I would say came along, मैं एक leading real estate group है Tri-City में, the GBP group. I became their AGM. And I handled their Indian and their international accounts, and I traveled a lot. Finally, I settled for what Milan taught me, freelancing. और अब आपकी तरह मैं भी अपनी सोशल एंड नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से निभा रही हूँ. आई एम वर्किंग फ्रॉम होम आपकी तरह, राइट? सो आज की शाम लाइक आई सेड बहुत ही खास है और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है दिल से कि आज हमारे ABIC प्लेटफॉर्म पे वी हैव अ पैनल डिस्कशन विद पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर कॉर्पोरेट करियर्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड होस्टिंग इट. जब लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं ना तो डिस्कशन का मजा ही दुगना हो जाता है, स्पेशली व्हेन दे आर ऑल ऑन द सेम पेज. And I think this is what holds the ABIC team together, you know, that mindset. आइए, let's move to the panel. हमारे आज के moderators हैं हमारे one and only founder diamond couple, Mr. Anil Naran and Mrs. Bindu Naran, mentors to all and to the entire team. Actually and factually, अगर ये ना होते तो हम भी ना होते. So they are, you know, they are nurturing the team right from the grassroots level. मतलब जिसे हम कहेंगे ना कि नीचे रूट से शुरू हो रहा है, पौधे उग रहे हैं. तो बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ बन रहे हैं, मतलब छोटे मोटे पेड़ नहीं बन रहे हैं, हम बरगद बन रहे हैं, यू नो. सो वी आर गोइंग लाइक दिस. जहां भी हम जा रहे हैं हम और जड़ें बना रहे हैं और हम और बढ़ते जा रहे हैं. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू देम. वैसे तो ये ना सूरज को दिया दिखाने की तरह है. सो वी हैव मिसेस बिंदु नारन. शी इज एन MA B.Ed with her masters in economics and she's taught math in a convent school, while we have Mr. Anil Naran, who's a B.Tech and a civil engineer by profession. He has a PGD in industrial relations and personnel management. And he's worked for a good 15 years in MNCs and then with the government, Punjab government. He built his business part-time and within a year, he quit to make it, you know, the success that it is now. Moving to our panelists, we have a very young, dynamic and successful team, let's say, of young couples with us today. We have the lovely Mrs. and Mr. Reeti and Kamal Monga. Reeti is an MA B.Ed with her masters in English and she's worked as a teacher, while Kamal is working as an AVP with the HSBC Global Finance. Then we have our ever smiling Mrs. and Mr. Pallavi and Ravneet Singh. Pallavi is a very successful architect and Ravneet is a DGM with the Tata Motors. Of course, we have Madhurika and Vishal Chabda. Madhurika has her masters in finance along with the B.Ed and she's been a teacher. Or Vishal DGM hai with the leading MNC that deals in beverages. And our fourth couple are the lovely Mrs. Roma Mondal. She's done her masters in commerce, and Mr. Atinder Mondal, who's working as a senior manager in Coal India. So let me first invite the one and only Mrs. and Mr. Naran
to kindly please take the stage. आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज हम लोग 4 ऐसे कपल्स को मिलने वाले हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं। वो लोग अपनी एजुकेशन करने के बाद सीनियर पोजीशंस में कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं सभी, और उसके साथ साथ एमवे बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली कर रहे हैं और इसमें उन्होंने अच्छी सक्सेस हासिल की। दे आर हियर ओनली बिकॉज दे आर सक्सेसफुल। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आज पता लगने वाली है, उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। मतलब वो पुराने 1998 वाले नहीं है, वो सब लोग, तब तो उनकी उम्र कितनी थी वो भी उनको पूछना पड़ेगा। दे आर न्यू इन द बिजनेस एंड बहुत ही फास्ट उन्होंने बिल्ड किया इस बिजनेस को। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम पल्लवी सिंह है एंड वी बोथ बिलोंग टू अंबाला एंड हम लोग एट प्रेजेंट रुद्रपुर उत्तराखंड में बेस्ड है। We both are blessed with 2 little twins. They are 2.5-year-old, a girl and a boy. And I'm an architect by profession. मेरा अपना personal practice है. And Ravneet, जैसे सर ने बताया, he is working with Tata Motors. And education की बात की जाए, मैंने अपना graduation हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज से किया था. And then I did my masters in landscape architecture, SPA School of Planning and Architecture, Delhi. उसके बाद 1 साल मैंने दिल्ली में काम किया एंड 1 ईयर के बाद आई मूव बैक टू अंबाला। मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया, साथ में मैं टीचिंग भी कर रही थी एंड टिल नाउ आई एम आल्सो, अब मैं फिर से अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम कंटिन्यूइंग माय प्रैक्टिस एंड ओवर टू यू रवनीत। सो थैंक यू। एक चीज उन्होंने जो नहीं बताई, वो दोनों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही जो है इन्होंने गोल्ड मेडल से की है इन हर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, गोल्ड मेडल तो नहीं मिला मेरे को, लेकिन आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड thereafter I went to Symbiosis, completed my post graduation और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे कैंपस प्लेसमेंट हुआ हमारा। आई एम एन एचआर प्रोफेशनल। कैंपस प्लेसमेंट में पहली जॉब आरपी संजीव गोयनका ग्रुप में लगी, व्हिच इज अ वेरी वन ऑफ इंडियाज प्रीमियर कंपनीज। और उसके बाद मैं टाटा ग्रुप में आ गया, जिसमें मैं अभी भी प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद द टाटा ग्रुप। दे आर आई वर्क विद द ऑटो टाटा मोटर्स कंपनी, व्हिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो तब से लेकर अब तक हम लोग मैं इन्हीं के साथ। Wow. So Ravneet, you did MBA from Symbiosis Pune, right? And then campus placement, and after that you are with Tata Motors. Very nice to know about you. Atinder and Roma, आप लोगों से जानना चाहेंगे आपके एजुकेशन एंड करियर प्रोफाइल के बारे में। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम, और बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने आज हमें यहाँ पे मौका दिया बोलने के लिए। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं रोमा मंडल, कोरबा छत्तीसगढ़ से हम बिलोंग करते हैं, हस्बैंड वाइफ। और मैं स्कूलिंग के बाद मैंने एमकॉम किया हुआ है और फैमिली में एज ए होम मेकर हूँ मैं। और हमारी फैमिली में मेरा एक बेटा है और हम लोग हस्बैंड वाइफ है, प्लस हमारे इन-लॉज भी हमारे साथ ही हैं। तो बहुत ही मतलब छोटी सी और प्यारी सी फैमिली है हमारी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर मैम, नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय से मैंने वहाँ से स्कूलिंग किया, उसके बाद बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने एमबीए किया एनर्जी मैनेजमेंट में, और उसके बाद यहीं पर लोकल में मुझे जॉब लग गई, फुल इंडिया में मुझे जॉब लग गई और अभी एट प्रेजेंट एज ए सीनियर मैनेजर यहाँ पर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है ये एसोसिएशन आप लोगों को। Very nice, thank you, thank you. And Vishal and Madhurika, we would like to know about your education and career profile. A very good evening to all present here and namaskar sabko. And sir and ma'am, thank you so much for inviting us to this panel. And Zarur, before I start sharing my experience and my qualification, मैं पहले माधुरिका से बोलूँगा कि एक बारी वो आप सबसे बात करेगी। Good evening, everyone, and I must say it's an honor to be on this panel tonight. और मैं actually जलंधर को belong करती हूँ और मेरी parental family like they are a business family, and मेरी education भी सारी जलंधर की है। मैंने graduate किया with English honors and then post graduation, since मेरा interest ज़्यादा arts में था, तो I post graduated in fine arts. And then I moved over and did a diploma in commercial art and I was a gold medalist. और फिर मुझे वहीं पर ही जिस कॉलेज से मैं पढ़ रही थी वहीं पर ही I got a job also.
and I was taken up 1 year मैंने वहाँ college में teach किया. Then I got a permanent post in the school, in a school, and I shifted to teaching in a school, and I was teaching higher grades, 11th and 12th. I was teaching fine arts to them, and then I got permanent grade before I got married. And eventually जब हमारी शादी हुई तो we had at that time Vishal was in Jaipur, so we had to go to Jaipur. तो मैंने अपना job quit कर लिया, and soon after we started family. और तो job लेने का मेरे को दोबारा मौका ही नहीं लगा, and we are blessed with 2 sons. और अब now I have started developing this business full time. So that is all about me. Thank you. Thank you so much. अगर हम मेरे बारे में बात करें तो मैं born and brought up, I am from Ludhiana only, and मैंने masters in finance किया हुआ again from Symbiosis, and before starting my career with corporate world, मैंने अपने career की शुरुआत traditional business से करी थी, and I wanted to build business always. तो मैंने शुरू के जो 5-6 साल थे अपने वो traditional business के अंदर invest किए. बट इवेंचुअली ट्रेडिशनल बिजनेस के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उनकी वजह से हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में शिफ्ट हो गए. एंड आई स्टार्टेड विद द कॉर्पोरेट जॉब विद द ऑटोमोबाइल कंपनी इन 2 व्हीलर्स. आई वाज वर्किंग फॉर हीरो मोटोकॉर्प टुडे. एट दैट टाइम इट वाज हीरो होंडा मोटर्स, एंड उनके साथ मैंने लगभग 5-6 स्टेट्स में काम किया. 6-7 साल की जर्नी मेरी ऑटोमोबाइल के साथ है. एंड post my automobile journey, then I moved to the beverage world, and अभी भी मैं beverage giant के साथ associated हूँ, और एक हम बड़ा जबरदस्त business build कर रहे हैं for them, and it's been 8 years now I have been associated with them as a DGM, sales and marketing. So thank you so much. That is all about us. Yeah, thank you Vishal and Madhurika, and yes, Kamal and Riti would like to know about you. Yes, thank you so much. Thank you for giving this opportunity to be in this panelist. And मेरा नाम कमल मोंगा है और मेरी वाइफ रीति मोंगा पहले ही अपने बारे में बताएंगी. Good evening, everyone. Good evening, sir and ma'am. Myself Preeti Monga from Firozpur. Presently हम जीरकपुर में रह रहे हैं और फिरोजपुर में ही मेरा पालन पोषण हुआ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब वहीं हुए. क्वालिफिकेशन वाइज आई हैव डन MA इंग्लिश एंड B.Ed, और उसके बाद मैंने 2 years स्कूल में जॉब की एज अ इंग्लिश टीचर. और 2008 वी गॉट मैरिड और हमारे 2 बच्चे हैं, बॉय एंड अ गर्ल. 11 years का बेटा है और बेटी 5 years की है. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू जॉब आफ्टर मैरिज, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं जॉब नहीं कर पाई. तो कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि हम इस बिजनेस में आ गए. Then I will talk later about this. Now Kamal will talk about himself. Yes, तो मेरा बर्थ प्लेस भी फिरोजपुर है. हम दोनों फिरोजपुर से बिलोंग करते हैं. एंड ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स में करा, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करा. एंड ग्रेजुएशन करने के 5 साल तक मेरा जो करियर रहा है वो आई वाज सेल्फ एम्प्लॉयड. मैंने 6-7 बिजनेस ट्राई करे. एंड 2006 में मेरी पहली जॉब बैंक ऑफ अमेरिका में लगी, जहाँ पे मैंने एज अ लोन डिस्पोजिशन स्पेशलिस्ट जो कि लोन्स सैंक्शन करते हैं, उस पोजीशन पे मुझे जॉब मिली. लगभग 6 साल मैंने बैंक ऑफ अमेरिका में काम करा, करीबन 4 प्रमोशंस लिए वहाँ पे. एंड उसके बाद पिछले 9 साल से मैं एक दूसरे इंटरनेशनल बैंक HSBC बैंक के साथ काम कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल असाइनमेंट भी लिए. हांगकांग, लंदन के असाइनमेंट्स पे काम करा, एंड अभी भी एक ग्लोबल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ. एंड इट्स ग्रेट जर्नी. अगर मैं देखूं अपने कॉलेज से लेके अब तक के करियर तक, so it's been roller coaster, and it's a great experience in a corporate sector. Thank you. And Kamal, I believe you also were posted outside, right? Or not only had international assignment, but also you were posted outside India, and you stayed there with your family, right? Where were you? In Hong Kong, right? हम 2014 से लेके 2015 में पूरा 1 साल we were posted to London with full family and on the HSBC Bank's roles out there in London. So वहाँ मैंने डायरेक्ट HSBC बैंक के CEO को रिपोर्ट करा है. HSBC बैंक के अपने लिक्विडिटी रिपोर्टिंग का एक प्रोजेक्ट था जो मेरे पास था, तो आई हैड टू
prepare presentations and report directly to the CEO at that time. Okay, very nice to know about you, Kamal. अब हम ना एक बड़ा important question रहता है बड़ा सबके mind में कि जैसे आप लोग jobs कर रहे हो तो आप तो बहुत busy हो गए like ना, तो आपके time schedule कैसे होते हैं, और बाद में बात करेंगे कि MBA business में कैसे है, लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि MBA business में तो आ गए लेकिन time कहाँ से मिल रहा है आपको MBA business करने के लिए? Ravneet, what is your schedule in your job? तो सर since I work in a manufacturing setup, तो manufacturing में हम लोगों का शेड्यूल काफी जल्दी शुरू होता है, compared to maybe other IT sector or other companies. So मेरा normal working hours is from 8 AM in the morning till 5:40 or around 4 to 6. But आते आते जैसे जैसे हम लोग सीनियर होते हैं पोजीशन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो जाने का टाइम तो फिक्स होता है लेकिन वापस आने का टाइम फिक्स नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली. So I come back usually by around 6:30, 6:30-7 बजे तक मैं वापस आता हूँ. और उसके बाद हमारे दोनों बच्चे जो हैं वो 2.5 साल के हैं. तो and wife also, Pallavi also has her 3 or 4 projects which are running in Uttarakhand and other states जो इनके आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. So इनके पास थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि ये खुद की मालकिन है. हमारे पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम है. बट इस सब के बावजूद हम लोग हम लोग कुछ ना कुछ करके मैनेज करते हैं. तो शाम को लगभग 8 से 10 के बीच में जो हमारा प्राइम टाइम है, दैट इज द टाइम जहाँ पे हम अपने 9 कोर स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई एंड कनेक्ट विद पीपल. कुछ मीटिंग्स जो हैं ऑफिस के लंच के दौरान या कुछ ऐसा बीच में जब कभी लीन पीरियड होता है तो हम लोग कुछ शाम के लिए मीटिंग्स सेटअप करने की कोशिश करते हैं उसमें. बट जो मेन वर्किंग टाइम है वो शाम का 8 से 10, 8 से 10:30, 11 बजे तक का टाइम है. गुड. तो आप दिन में बिजी होते हैं, शाम को आप बिजनेस करते हैं. पल्लवी, आपकी क्या रूटीन रहती है आपके आर्किटेक्चर प्रोफेशन में? सर मेरा फ्लेक्सिबल है डेफिनेटली टाइमिंग. तो मैं अपने स्लॉट्स एज पर माय किड्स का रूटीन जो मेरा रहता है बच्चों के साथ और अपने काम का रूटीन, सो मेनली जो हम दोनों का रहता है वो इवनिंग टाइम ही हमने जैसे कर रखा है. दैट इवनिंग हम लोग फिक्स करेंगे एंड वी विल डेडिकेट इट टू दिस पर्टिकुलर बिजनेस. एंड मॉर्निंग टाइम में जैसे भी मुझे टाइम लगता है when जब बच्चे सो रहे हैं या जैसा मेरा रूटीन होता है, तो उसके बीच में आई ट्राई एंड कंटैक्ट न्यू पीपल और कोई ना कोई मीटिंग हम लोग इवनिंग के लिए सेटअप करने की कोशिश करते हैं या कोई ऑर्डर्स प्लेस करने हैं. तो जो भी और काम है अदर देन शोइंग अ प्लान, ऑर्डर्स प्लेस करने कुछ, वो मैं डे टाइम में जनरली प्रेफर करती हूँ कि मैं फिनिश कर, वो हम इवनिंग के लिए ना छोड़े. तो नाइस. आपके बच्चे बहुत ही क्यूट हैं और हमारे पूरे ABIC सब लोग वेट करते रहते हैं वो कब आके डांस करेंगे. तो हमारे बहुत जबरदस्त बच्चे हैं और उनकी बहुत सारी वीडियोस आप कई बार आपने पोस्ट की हैं, तो बहुत ही बढ़िया है. तो वो दोनों बहुत छोटे हैं एक्चुअली, दोनों 2.5 साल के हैं. तो आपके साथ तो आपके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, है ना, आप अकेले रहते हो और आप दोनों जॉब, रवनीत हैज अ बिजी जॉब, यू आर आल्सो बिजी इन योर प्रोफेशन एंड यू आल्सो हैव 2 लिटिल किड्स टू टेक केयर ऑफ जो कि अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं. तो उनको भी मैनेज करते हो तो उनके साथ बिजनेस के लिए टाइम निकल जाता है या आपको लगता है कि बहुत ओवरबर्डन हो गए हो आप? तो हम लोग वही, जैसे हम लोगों ने रूटीन ऐसा बना रखा है कि जब बच्चों का टाइम है तो मैं जब वो जैसे सो रहे होते हैं, सो वो पॉकेट्स बेसिकली हम लोगों ने फिक्स कर रखे हैं कि हमें कब मैनेज करना है. तो या मैं उनको एक्टिविटी में एंगेज करती हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ जो भी मैसेजेस करने या ऑर्डर करने हैं, वो तो अब डिजिटल होने का यही फायदा है. सो हम लोग बैठे बैठे कार्ट में डाल दिया एंड देन जैसे मुझे टाइम मिला मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया. वो हम टाइम स्लॉट्स बांधने पड़ते हैं. यू हैव टू फिक्स अप योर टाइमिंग. इनफैक्ट अभी तो सर हमारे पास thankfully we have full time caretaker who has just come to us. उससे पहले जब हमारे पास फुल टाइम नहीं होता था कोई, so we used to take the kids. अगर हम किसी के घर प्लान दिखाने जा रहे हैं, we used to take the kids along. And जैसे मैं प्लान दिखा रहा होता था, कई बार हमने ऐसा किया, तो मैं जैसे अगर प्लान दिखा रहा हूँ तो we will go out, कहीं उनको घुमा लेगी या she will keep them engaged. And उसके बाद जब ये प्रोडक्ट डेमो कर रही है तो मैं उनको बाहर ले जाता था to keep them engaged. कई प्लान हमने ऐसे भी किए हैं. You are an inspiration for everybody, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, बिजनेस नहीं कर सकते. ये बहुत लोगों का ऑब्जेक्शन रहता है और बहुत सारे लोगों का रहता है कि जॉब करें इसलिए नहीं कर सकते. और आप बहुत भी बड़ी एग्जांपल हो कि आप दोनों प्रोफेशनल हो, दोनों अपने जॉब्स को बढ़िया तरीके से कर रहे हो. और लाइक Ravneet has really grown very fast and I would later come back to him and ask him how he has tumbled up in his hierarchy. Tell us something about that. You're out of the 10 promotions.
और ट्विंस बच्चों तो टाटा मोटर्स या टाटा ग्रुप में सर जैसे इनफैक्ट काफी सारे कॉर्पोरेट्स में इस तरह के ये हैं, ऑल्दो टाटा ग्रुप भी काफी पुराना है तो बहुत सारी इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं नाउ दे आर बीइंग कॉपीड बाय लॉट ऑफ अदर कंपनीज। तो इसको ये बेसिकली टैलेंट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस होते हैं। तो फास्ट ट्रैक सिलेक्शन स्कीम या टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इस तरह की दो बड़ी स्कीम्स हैं जो टाटा ग्रुप कंपनीज में चलती हैं, जिसमें फास्ट ट्रैक सिलेक्शन स्कीम में जैसे हम आई क्लियर्ड दैट इन 2018 और उस समय लगभग 1800 लोग जो एलिजिबल थे, ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी पहला तो बेस एलिजिबिलिटी, उसमें से 1800 लोगों ने जो एलिजिबल थे उन्होंने अप्लाई किया और उसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज, ऑनलाइन असेसमेंट्स, जिस तरह से फौज का असेसमेंट होता है, खाली फिजिकल असेसमेंट के अलावा बाकी सारा असेसमेंट उस तरह से होता है। सो वो असेसमेंट्स करते करते एंड में खाली 18 लोग सिलेक्ट हुए। Right. So basically, Ronit and Pallavi are excelling in their career. That's number one thing to be seen. पहली चीज देखने वाली है कि उधर एक्सेल कर रहे हैं, yes. और रवनीत ने बहुत एक्सेल किया है अपने जॉब प्रोफाइल में, और उसके साथ साथ प्रमोशन उसके साथ साथ बच्चे पाल रहे हैं दो, है ना, छोटे छोटे ट्विंस का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, yes. और उसके साथ साथ पल्लवी अपना आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर रही है and they are doing extremely well in their MBA. सर मैं पहले अपना शेड्यूल बताता हूँ। मैं एक्चुअली कोल इंडिया में हूँ, पहले ही बता दूं, और ये वर्ल्ड का जो है ये 5th लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन कंपनी है। एज यू नो दैट कोल इज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उस हिसाब से जबरदस्त प्रेशर है, वर्क प्रेशर है। अभी खासकर ये जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन है, इसमें मैं लिटरली आई विल से दैट पेंडेमिक सिचुएशन क्या है हमें नहीं मालूम। हम फुल प्रोडक्शन में जाते हैं, लेकिन वहां से जब घर आते हैं तो एक बड़ा सा डर रहता है हमारे मन में कि न जाने क्या क्या हम लेके आ रहा वायरस। तो जो भी है, न्यूट्रिशन की वजह से हम लोग फिट हैं, भगवान की वजह से टचवुड बहुत अभी तक बेटर है, बहुत अच्छा है। तो ऐसा प्रेशर सर ऐसा है कि मैं खासकर जिस सेक्शन में हूँ एज ए सेक्शनल हेड, उसको बोलते हैं सर डोजर सेक्शन बोलते। जो बुलडोजर होता है ना सर, जो मटेरियल को डोज करता है, एक्चुअली वो एक ऑक्सिलरी सपोर्टिंग इक्विपमेंट होता है। कोई भी कोई भी एक्सकेवेटिंग इंडस्ट्री में, चाहे कोल हो चाहे जो भी मिनरल वगैरह जो भी हम एक्सकेवेट करते हैं उसके लिए, तो जो ये जो मशीन होता है, ये किसी माइंस को स्टार्ट करने की मशीन की जरूरत होती है और किसी माइंस को बंद करने की मशीन की जरूरत होती है। तो ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट मशीन होता है और उसका मैं इंचार्ज हूँ। मेरे पास एज अ टोटल 400, आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से समझेंगे, 410 HP के मेरे पास 22 मशीन है, और उससे जस्ट डबल 850 HP के मेरे पास 7 मशीन है, टोटल 29 मशीन है। और अभी ये हाल है कि अभी तो मैन पावर वर्क का है, तो बहुत खैर अलग चीज़ है, बहुत ही जबरदस्त ये क्रंच है मैन पावर का। फिर भी ये शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं बताऊं कि अदर देन ये प्रेशर, मेरा जो स्टार्ट होता है, डे का जो स्टार्ट होता है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फ्रेश वगैरह होकर 6:30 बजे मैं वॉक पे निकल जाता हूँ, 30 मिनट्स वॉक करता हूँ, और कान में मेरा एक हेडफोन लगा रहता है, और उसी वॉक के दौरान 30 मिनट्स में CD सुनता हूँ। इसके बाद घर आने के बाद मेरा एक्सरसाइज चालू होता है, हाफ एन आवर एक्सरसाइज होता है। फिर उसके बाद मैं चले जाता हूँ ड्यूटी में। ड्यूटी जाता हूँ मैं 8:30 बजे से सर, GM लोग सब हमारी मीटिंग होती है सब सेक्शनल हेड्स की। वहां से जब चालू होता है मेरा जो हेक्टिक शेड्यूल, घर आने का कोई टाइम नहीं रहता। ऑन एन एवरेज घर आते आते 7:30 8 तो बज ही जाते। तो इस दौरान ड्यूटी पीरियड के मैं जब थोड़ा बहुत तो खाली थोड़ा सा मिलता है, तो उस दौरान मैं कभी अपने लीडर्स लोग से बात कर लेता हूँ, या फिर कुछ रिटेलिंग की बात भी कर लेता हूँ। वहाँ पर तो ओपन कास्ट माइंड से वहाँ पर हम लोग का हैजर्डस बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा मतलब इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। फिर भी बाकी भी बहुत सारे चीज़ें हैं, तो उसमें वहाँ पर मैं कुछ बातें करता रहता हूँ। लोग हेल्थ के लिए सेफ्टी, एक्चुअली सेफ्टी हम लोग का फर्स्ट जो सेफ्टी होता है, सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी हमारा ये जो अभी जो पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, इसमें भी सेफ्टी से रिलेटेड सेफ्टी भी है। और उसके बाद शाम को घर आने के बाद फ्रेश वगैरह होके 8:30 बजे के बाद जब तक मैं सोता नहीं तब तक मेरा कंप्लीटली मेरा जो टाइम रहता है, मैं अपने टीम के लीडर से बात करता हूँ, कुछ हम लोग का प्लानिंग रहता है नेक्स्ट डे के लिए। तो ये मोटामोटी ये मेरा शेड्यूल रहता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, सिर्फ इवनिंग मिलती है आपको। एंड रात में कभी भी फोन भी आ जाता है, मुझे जाना ही पड़ता है वहीं से। ओह, रात को भी जाना पड़ता है, ठीक है। रोमा जी, आपका क्या शेड्यूल रहता है? सर मैं एज ए होम मेकर हूँ और मेरा बेटा अभी क्लास 12th में है,
तो बेटा मतलब ऐसा है कि मेरे घर में सारे के सारे लोग बहुत मतलब इस बिजनेस को लेके हमारा हेल्प भी करते हैं, और मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। और एज ए होम मेकर होने के कारण टाइम की पूरी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास है। मैं अपने टाइम को अपने हिसाब से, कौन सा टाइम मेरा काम का रहता है, किचन वर्क रहता है या जो भी काम रहे मेरा घर का, मैं वो सब मतलब काम कंप्लीट करके या फिर काम के बीच में ही अपने हिसाब से मैं टाइम को मैनेज करते हुए किसी से फोन कॉल करना, या फिर अपने टीम के किसी जो नए लीडर है उनके साथ जूम में अलग से बैठना है, तो इंडिविजुअली मैं उनके साथ अलग से कनेक्ट होती हूँ। और फिर जैसे ऑर्डरिंग वगैरह का काम हुआ या फिर कोई पीसी रजिस्टर करना हुआ, तो ये सब काम मैं घर में अपना मैनेज कर लेती हूँ। और जनरली ये सब जो दिन का समय रहता है ना, वो बहुत ही सही टाइम रहता है ये सब काम करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मतलब ये जो 3 बजे से लेके 5 बजे का टाइम रहता है, लेडीज प्राय खाली, मतलब उस समय सब थोड़ी सी फ्री हो जाती है काम करके, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज करती हूँ इसमें, ताकि मेरे हस्बैंड आए उसके बाद फिर हम लोग आपस में अपना दूसरा डिस्कशन कर सके। मतलब वो जो लेडीज वाला पार्ट है वो मैं घर में रहते रहते अपना वो हैंडल कर लेती हूँ, कि वहां पे मतलब मेरा रोल बहुत ज्यादा रहता है कि वहां आने के बाद, ड्यूटी से आने के बाद हम दूसरा काम कर सके, हमारा ये फोकस रहता है। तो आप खुद अपनी जूम मीटिंग्स करते हैं अकेले? हाँ सर। 3 से 5 के बीच में आप लेडीज के साथ क्या एक्टिविटी करते हैं? सर मैडम जैसे ये 4 बेसिस उनको सिखाना, तो 9 कोर स्टेप्स सिखाना, कभी कुछ प्रोडक्ट्स के डेमो वगैरह दिखा देना कि ये प्रोडक्ट ऐसा रहता है। कभी ऐसा होता है कि किसी ज्यादा नहीं, कम से कम 2-3 प्रोडक्ट ही दिखा दिए। जो नए लोग हैं उनके साथ मैं ऐसा करती हूँ, एक एक के साथ ही बैठती हूँ इस टाइप का। और जैसे प्रोडक्ट का जो अभी प्रमोशन वगैरह करना, अपने फ्रेंड्स को मैं जैसे कॉल करती हूँ, मेरी जो भी फ्रेंड्स है, जो लोग बिजनेस, मैं बिजनेस की बात ही वहां नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स सर्कल में मैं पहले कर चुकी हूँ, तो कोई बिजनेस के लिए बिजनेस माइंडसेट में नहीं है, तो मैं जस्ट उनसे प्रोडक्ट की बात करती हूँ। अभी जो इम्यूनिटी पे बात हो रही है कि विटामिन सी क्यों जरूरी है, मैं उनको डेमो करके दिखाती हूँ पर्सनली, है ना। और जो भी कभी कभी होम केयर के कुछ प्रोडक्ट हो गए उनका डेमो करके दिखाती हूँ। तो इस टाइप का मतलब मैं छोटे छोटे डेमो मतलब करती रहती हूँ। सर जैसे कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया था कि मैं बेवरेजेस के साथ एसोसिएटेड हूँ, सो बेवरेजेस के अंदर भी दिन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है, बिकॉज मार्केट सप्लाईज वगैरह हमारी जनरली 8-8:30 निकल जाती है। सो टीम ऑल्दो काम जल्दी स्टार्ट होता है, बट मैं अराउंड 9 o'clock से मेरा डे स्टार्ट होता है फॉर माई ऑफिस। सो 9 o'clock जब हम एक बारी जॉब पे चले जाते हैं, तो लाइक एनी अदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि सारी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब्स हैं और सारे हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रैंक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द डे हमारा काफ़ी ऑक्यूपाइड रहता है, काफ़ी हेक्टिक रहता है। एंड इन द इवनिंग यूजुअली बाय 6:30 आई लीव, 6:30 to 6:45 आई लीव फ्रॉम ऑफिस, एंड 7:15 के आसपास व्हेन आई रीच होम, तो उसके बाद बेसिकली हमारा जो मेन एमवे का जो भी हमने शेड्यूल किया होता है, वो हमने सारा का सारा 7:30 से 9:30-10 बजे के बीच में शेड्यूल किया हुआ है। एंड अब जो मैंने अपना स्प्लिट किया हुआ है बिजनेस डेवलपमेंट का, एज अभी अतिंदर जी ने भी डिस्कस किया कि जो सीडी लिस्टिंग है वो मैंने सुबह के टाइम में रखी हुई है, बिकॉज आई गेट अप अराउंड 5, मेरा आई वेक अप अराउंड 5 o'clock, तो सीडी लिस्टिंग बिल्कुल फ्रेश माइंड से एक जब आप डे स्टार्ट करते हैं, तो मैं सीडी लिस्टिंग सुबह कर लेता हूँ। एंड वंस वी रिटर्न बैक फ्रॉम ऑफिस, तो जो नए लोग हमारी टीम में आ रहे हैं उनकी अगर इंडक्शन शेड्यूल करता हूँ, तो वो भी मैं लेट इवनिंग की करता हूँ, जो भी उनको जूम पे लेके इंडक्ट करना है चीज़ों के बारे में। एंड इंडक्शन शाम को है, अगर मेरी कोई अपॉइंटमेंट है, किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, दैट इज ऑल्सो आई डू इन द इवनिंग। एंड बिफोर वी गो टू बेड, राइट, दैट इज द आइडियल टाइम व्हेन वी ऑप्ट फॉर बुक रीडिंग। मतलब मेरे को पर्सनली, क्योंकि मेरे शेड्यूल में वो एक पीसफुल टाइम है शाम का, जब मेरी कॉल्स बंद हो चुकी हैं, मेरी अपॉइंटमेंट जो थी वो हैंडल हो चुकी हैं, और जो मैंने जिससे फिक्सअप किया था वो एड्रेस हो गया है, तो पोस्ट डिनर एंड प्रोबेबली पोस्ट आवर मीटिंग, क्योंकि हमारी जो जूम मीटिंग्स होती हैं जनरली 10:15 बजे एंड हो जाती हैं, तो वी स्टिल हैव, तो मुझे इजीली अराउंड 20 to 25 मिनट्स आई एंश्योर कि मैं रीड करके जरूर सोऊं। So I end my day with a good book reading, and I begin my day with the CD listening, and during the day, all fully engaged with my corporate, because आपको पता ही है। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आई एम रियली थैंकफुल टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो बंदा काम कर रहा है ना, वो बंदा मल्टीटास्किंग में चैंपियन बन जाता है, राइट वो मल्टीटास्किंग में चैंपियन बन जाता है, उसका स्टेमिना बन जाता है।
स्टेमिना बन जाता है काम करने का। एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज मैं महसूस करता हूँ दैट आई एम रियली थैंकफुल टू अगेन टू द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड टू माय जॉब्स जो मैंने अभी तक करी है और कर रहा हूँ, कि कई लोगों को आराम करके आराम मिलता है, राइट? और मेरे को लगता है हम लोग को काम करके आराम मिलता है, राइट? सो कहीं ना आई वेरी स्ट्रांगली फील हमको लगा 2 घंटे कोई काम नहीं किया ना, लगता है अरे क्या डल हो गया यार, मतलब कुछ एक्शन ही नहीं है। सो आई बिलीव लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन एंड एक्साइटमेंट। तो मेरे को मेरी जॉब पे भी बहुत मिलती है, हम बहुत पैशनेटली उस काम को करते हैं, एंजॉय करते हैं, थ्रिल्ड रहते हैं। वहाँ पे मेरी बहुत बड़ी टीम है एंड उनको भी इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, टीम को बिल्ड करना और लीड करना, वहाँ भी इंजॉय करते हैं। और बस वही चीज शाम को आके हम अपना दूसरी तरफ शुरू हो जाते हैं अपनी टीम। But it is fun, Yeah. and because if it is your passion and you are doing it passionately और आप उसको दिल से कर रहे हो और किसी चीज को, एक बड़ी चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो आई थिंक घड़ी देख के काम नहीं हो सकता। So if you are building something big, so it is a continuous process. Very good. Yes. Very nice. माधुरी का आपसे। Good to Madhuri, yes. सर ऐसा मैम कि जैसा कि विशाल ने कहा, हम डे तो अपना स्टार्ट क्वाइट अर्ली, और बट ये जरूर रहता है कि बिकॉज हाउसहोल्ड रिस्पांसिबिलिटीज भी सारी रहती है, तो आई फिनिश ऑफ माय कोर्स बाय 11:30-12 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। तो दैट प्री लंच टाइम जैसे 12 से 1-2 बजे का जो टाइम रहता है उसमें डिपेंड करता है। आई हैव दैट टाइम, कई बार आई रीच आउट टू पीपल, कई बार एसटीपी भी उस टाइम पे मैं प्लान कर लेती हूँ। ऑर्डर्स लगाने, जैसे कि कस्टमर्स को अगर कस्टमर ऐड करने या कोई हमको न्यू ज्वाइनिंग्स करनी होती है, तो आई ट्राई टू डू इट ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि वो थोड़ा मेरा लीन रहता है टाइम की, बिकॉज बच्चों की क्लासेस भी खत्म हो जाती हैं and my work is also done, तो उस टाइम में मैं I try to manage this work and during the afternoons, जब after lunch मैं, जब मेरे बच्चे पढ़ते हैं तब मैं CD listening कर लेती हूँ, साथ साथ उनको गाइड करती रहती हूँ। and book reading also sometimes मैं, because I like reading books, तो जब मैं उनको पढ़ा रही होती हूँ तो साथ साथ कभी कभी या मैं बुक रीड भी कर लेती हूँ और उनको भी साथ साथ पढ़ा देती हूँ। एंड आफ्टर लंच, बिकॉज लंच टाइम ऐसा होता है थोड़ा सा टू रीच आउट टू पीपल लगता है थोड़ा इट्स नॉट द करेक्ट टाइम, तो आफ्टर लंच अगेन जब पढ़ाई वगैरह बच्चों की खत्म हो जाती है अराउंड 4 में आई अगेन मैं उसी टाइम में कोशिश करती हूँ कि एसटीपी या किसी से मुझे कनेक्ट करना है, तो 4 to 6 दैट इज द टाइम कि मैं उसके बीच में शेड्यूल करने की कोशिश करती हूँ चीजें। एंड इवन इफ आई एम मीटिंग विद आवर टीम मेंबर्स, हमारा कुछ रहता है, कोई कॉलिंग करनी, कोई भी एनीथिंग, तो वो उसी टाइम पीरियड में मैं करती हूँ। फिर देन अगेन इवनिंग में आई गेट बिजी विद द किचन, और फिर आफ्टर डिनर ऑफ कोर्स जैसा विशाल ने, विशाल थोड़ा इवनिंग में काम कर लेते हैं आने के बाद, एंड पोस्ट डिनर हम वी आर डू आवर मीटिंग्स एंड बुक रीडिंग, वो हमारा शेड्यूल रहता है। एंड ऑफ कोर्स जैसा पल्लवी मैम ने भी कहा था कि वो पॉकेट्स होती हैं, हमको ढूंढनी पड़ती हैं बीच बीच में, वी हैव टू मैनेज, और ये भी बस मुझे लगता है प्रायोरिटी सेट करने की बात है। अगर आप, जैसे पहले मैं काम करती थी तो थ्रू आउट द डे मेरा काम स्प्रेड रहता था, बट अब मुझे पता है कि मुझे किसी चीज के लिए टाइम निकालना है, तो आई ट्राई टू अपना फिट इन थिंग्स कि थोड़ा मुझे टाइम उसके लिए भी मिल जाए। तो लेडीज में ये मुझे लगता है इनेटी टैलेंट होता ही है ये कि हमें जब कोई चीज बीच में करना होता है तो हम उसके लिए कैसे भी टाइम निकाल ही लेते हैं। आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में हैं? मैम मेरा बड़ा बेटा जो है वो 8th स्टैंडर्ड में है, और छोटा बेटा मेरा 2nd स्टैंडर्ड में, और दोनों को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, तो रहता है उनका भी काम। इन बिटवीन जब आप काम करते हैं तो वो आपको बीच में आके डिस्टर्ब करते हैं या कुछ? मैम मैं उनको, जब मैं काम करती हूँ, इट इज क्लियर टू देम दैट दे डोंट हैव टू डिस्टर्ब मी, और बहुत हेल्प करते हैं इनफैक्ट मेरी, दे आर क्वाइट कोऑपरेटिव। वेरी गुड। उनको पता है मीटिंग का टाइम है या मम्मा कुछ कर रहे हैं, तो दे डोंट कम टू मी। Actually, sir, हमने ना बैलेंस किया हुआ है, when we give them time, we give them time. I have during the week मैंने उनके साथ स्पोर्ट्स का टाइम भी फिक्स अप किया हुआ है, हमने उनके साथ बैठ के चैट करने का टाइम भी फिक्स अप किया हुआ है, so they don't feel
कि हम उनको neglect कर रहे हैं. We are giving them time. That is the Schedule करना पड़ता है so that कोई भी चीज it should not get haywire. Yes, very good, very good. I never try to manage time. मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि एक्टिविटीज मैनेज करनी चाहिए एंड लाइक दे ऑल सेड बीच में हम गैप्स ढूंढते हैं, राइट. आई ऑल्सो फाइंड द गैप्स कि किस टाइप पे मैं काम कर सकता हूँ. बट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मैंने अब तक जितना एमवे बिजनेस बिल्ड किया है, आई बिल्ड इट मोस्टली ओवर द वीकेंड्स. बिकॉज मुझे पता है वीकेंड्स में आई एम टोटली फ्री, मेरे पास कॉर्पोरेट का कोई वो नहीं है. एंड लाइक विशाल जी ने बोला कि अगर आपके पास ऑफिस में काम नहीं है तो आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हो, इट्स वेस्ट, राइट. उस टाइम पे आप एमवे पे फोकस कर नहीं सकते बिकॉज यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द ऑफिस. आपने उस पर काम करना है एंड बेटर यू परफॉर्म बेस्ट एट योर जॉब. बिकॉज अगर आप वहाँ पे अच्छा काम कर लोगे तो वही माइंडसेट आपका रहता है कि आप अपने पर्सनल साइड गिग में या बिजनेस में आप कर पाओगे. अगर आप वहाँ पे ही एक ऐसा एटीट्यूड है आपका कि आप लेजी हो या वहाँ से काम से जी चुरा रहे हो, तो यू कैन नेवर सक्सीड इन अनदर थिंग. तो वो चीज़ हमें भी है. पर मेरा स्केड्यूल रहता है, मैं सुबह मेरी 11:30 से कॉल स्टार्ट होती है, यूके से स्टार्ट होती है कॉल, बिकॉज वहाँ पे लोग 6:30-7 टाइम होता है उस टाइम पे एंड दे समटाइम टेक अर्ली कॉल्स एंड करीबन 7.5-8 घंटे मेरे दिन में कॉल्स रहती हैं. तो आई फाइंड द टाइम्स मोस्ट ऑफ टाइम आई फील सॉरी कि नारायण सर का फोन आता था, मैं उनको मैसेज करता हूँ कि सर इन मीटिंग, तो मैं इनको बहुत बार बाद में कॉल करता हूँ क्योंकि मैं किसी न किसी कॉल्स पे प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, वीडियो शेयर हो रहा होता है एंड आई एम वर्किंग. तो उस टाइम पे मैं आई कांट डू एनीथिंग एल्स. एंड आफ्टर द कॉल्स आपने जब मीटिंग्स कर ली एंड देन देयर आर द टास्क, आपने कुछ काम करना है जो डिलीवरेबल है एंड दोज डिलीवरेबल्स हैज टू बी डन विद इन दैट डे. जब तक कि आपका डे एंड ऑफ द क्लोज ऑफ बिजनेस वो क्लोज नहीं हो जाता. तो कई बार मेरे रात को 12, कई बार 12:30, कई बार 1 बजे तक वो असाइनमेंट्स जो काम मेरे ऊपर है जो मैंने करना है वो चलता है. एंड बिटवीन आई फाइंड द गैप्स एंड वही एक्टिविटीज प्लान करने की बात रहती है कि एक्टिविटीज मुझे कैसे प्लान करनी है. एक बार स्केड्यूल बन जाता है तो देन यू हैव दैट हैबिट कि आप जब गैप मिलेगा आप क्विकली यू विल रीच आउट टू द बुक, क्विकली यू विल रीच आउट टू द सीडी और यू विल रीच आउट टू सम पर्सन. तो मेरे पास एक डायरी हमेशा ओपन रहती है अपने ऑफिस की टास्क, जिसमें मैं लिखता रहता हूँ कि मुझे क्या काम करना है, बिकॉज सम थिंग्स आर अर्जेंट एंड सम आर इम्पोर्टेंट, राइट. तो साथ में मैंने एक डायरी और लगा रखी है जिसमें मैं अपने पर्सनल कामों की लिस्ट, जैसे एमवे में किसी से बात करनी है, नारायण सर को फोन करना है, कुछ मैसेज करना है, एंड इन बिटवीन द गैप्स आई कीप वर्किंग ऑन द व्हाट्सएप बिकॉज टेक्नोलॉजी हमें बहुत जबरदस्त मिली है. व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी, यू कांट टॉक, तो आप आराम से किसी से व्हाट्सएप चैट करके मैसेज अपना कन्वे कर सकते हो एंड देन you can wait and get the reply and whatever time I get over the weekends I totally dedicate to the MBA business apart from personal tasks. कुछ काम रह गए हैं तो I try to give it to MBA. वीकेंड का स्केड्यूल मेरा पहले बना होता है कि वीकेंड में मुझे मॉर्निंग से लेकर 10 बजे से लेकर रात को किस टीम मेंबर से बात करनी है, किस टीम मेंबर को इंडक्ट करना है, किससे नया कॉन्टेक्टिंग करनी है, किसको प्लान दिखाना है. एंड बीच में मतलब आई डोंट थिंक कि मुझे स्पेशल कभी टाइम निकालना पड़ेगा किस चीज़ के लिए. इट्स इनबिल्ट, जैसे मैम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, कि जब आप कार चलाते हो तो यू डोंट फोकस ऑन कि मुझे गियर चेंज करना है, यू डोंट फोकस ऑन कि मुझे ब्रेक लगानी है, राइट. सो एमवे इज नाउ इनबिल्ट इन आवर डीएनए कि हमारे बच्चे भी जानते हैं कि पापा अगर लैपटॉप पे बैठे हैं तो किसी न किसी ऑर्डर लगा रहे होंगे. पर्सनल लैपटॉप है तो ये ऑर्डर लग रहा होगा या पीसी जम रहा होगा. तो दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट्स हैपनिंग टू अस. तो नाउ रीति बताएंगे कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं, रादर एक्टिविटीज, बिकॉज हमारे डिक्शनरी में टाइम मैनेजमेंट वर्ड नहीं है. वी डोंट मैनेज टाइम. टाइम इज 24 आवर्स. वी जस्ट मैनेज आवर एक्टिविटीज. जैसा कि कमल ने बोला, एक्टिविटीज मैनेज करते हैं हम. पहले टाइम कुछ डिफरेंट था. जब बच्चे स्कूल जाते थे तो मॉर्निंग के 3 आवर्स मुझे मिल जाते थे. मैं बोलती थी 9 to 12 जो है मेरा ऑफिस टाइम है, क्योंकि मैं अपना ऑफिस का एमबीए का काम करती थी उस टाइम पर. तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ, स्कूल बंद, तो अब मेरा दिन स्टार्ट होता है 6 o'clock विद सीडी. मैं मॉर्निंग में ही सीडी चलाती हूँ क्योंकि बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होती हैं 8 o'clock, मुझे उन्हें 7 o'clock उठाना है. तो 6 to 7 का जो टाइम है, मैंने वही है कि एक्टिविटी अपनी मैनेज कर ली कि जो मैं सीडी रात को सुनती थी या दिन में कभी मैनेज करती थी जब, तो वो मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट कर दी. 6 to 7 में अपने घर के काम और साथ में मेरी वो सीडी चलती है. 48 मिनट्स या 50 मिनट्स या कभी 1 hour की सीडी जो होती है मेरी, वो 7 o'clock तक फिनिश हो जाती है. एंड देन मैं बच्चों के साथ फिर से बच्चों को उठाया, स्कूल मतलब सॉरी उनकी क्लासेस के लिए उन्हें तैयार किया और
10 o'clock या मोस्टली 11 o'clock तक, डिपेंड करता है कि ऑल्टरनेटिव क्लासेस होती हैं, और इन बिटवीन किचन का काम, मतलब सुबह बहुत हौच पौच, कहीं उनकी क्लासेस फिर साथ में किचन, मतलब टिल 12 तक मेरा यही रूटीन रहता है। फिर 12 to 2 मैंने अपना एमवे का टाइम सेटअप कर लिया कि उसमें मुझे अपनी कॉलिंग करनी है, किसी के साथ शो द प्लान है, या कमल ने मुझे अपना कुछ काम बता दिया, किसी कॉल आ रही थी, ऑर्डर लगाना है या ज्वाइनिंग करनी है, वो 12 to 2 जो है वो मेरा इस बीच में निकल जाता है। एंड देन लंच टाइम, तो लंच टाइम के बाद थोड़ा रेस्ट और बच्चों के साथ थोड़ा प्ले भी करना है, कि बच्चों को बाहर नहीं जाना तो घर में खिलाना है, खेलना भी उनके साथ, वो टाइम निकल जाता है। क्योंकि जैसे मधुरिका जी ने बोला कि हम आफ्टरनून टाइम किसी को कॉल नहीं कर सकते, इट्स फील्स ऑड कि सबका रेस्ट करने का टाइम है तो हम डिस्टर्ब क्यों करें किसी को, तो उस टाइम पर कॉलिंग नहीं होती है। एंड देन इवनिंग चाय डिनर टाइम सब कुछ हो गया। 6 to 8 फिर से मैंने 1 hour अपनी डॉटर को पढ़ाना है, क्योंकि बेटा जो है वो खुद मैनेज कर लेता है काफ़ी चीज़ें, थोड़ा उसको गाइड करती हूँ, बट उतना मुझे इतना प्रेशर नहीं है अपने बेटे का, डॉटर को मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो 1 hour 6 to 7 या 7 to 8 उसकी पढ़ाई के लिए तो स्प्लिट हो जाता है, 6 to 7 एमवे या 7 to 8 एमवे, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, मेरी किसी की कॉल आ रही है या मैंने कॉल करनी है, या जो भी मेरा स्केड्यूल बना हुआ उसके अकॉर्डिंग, तो वो टाइम मेरा फिक्स है। एंड देन डिनर टाइम, और उसके बाद अगर कमल टाइम से फ्री हो जाते हैं तो हम फिर डिस्कशन करते हैं कि पूरे दिन में उन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया। तो हम इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं कि मुझे ये मतलब लगता है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन को। पहले क्या सिचुएशन थी या आपकी सिचुएशन है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों को एक्सक्यूज बनाते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे, बच्चे आ रहे हैं। सब जानते हैं, या मैम और सर तो स्पेशली जानते हैं कि जब हमने ज्वाइन किया तो हमारी डॉटर 1 year की थी, तो बहुत मुश्किल टाइम रहा वो, बट मैंने बच्चों को एक्सक्यूज नहीं बनाया, उनको अपना रीजन बना लिया कि हाँ बच्चों के साथ ये करना है और बच्चों के साथ मिलके करना है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जब हम बुक रीड करते हैं, हमारी डॉटर हमारे साथ बुक रीड करती है, और सरप्राइजिंग मतलब अमेजिंग थिंग इज दैट शी डजंट नो हाउ टू रीड। 5 years की है, उसे पढ़ना नहीं आता है अभी, फर्स्ट क्लास में, अभी इसको वर्ड्स रीडिंग सिखा रही हैं कि कैसे है वर्ड सेंटेंसेस, लेकिन वो हमारे साथ बुक लेके बैठती है।